My dear students, welcome you all in today's lecture. All students of class 9, today we are going to teach you algebra first chapter 6. So before we are going to study set, you must know about the numbers which we already written on the board. My dear students, first of all, types of numbers. All these numbers you have already studied in previous classes, but today I want to remember. Today I want to recall you types of numbers. The first number is natural numbers. Numbers like 1, 2, 3, 4 are called natural numbers. 1, 2, 3, 4 means it goes to infinity. Natural numbers are denoted by capital English letter N. Where is capital English letter N in maths? It means it is natural number. Natural number is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to infinity. Then second number is whole numbers. Whole number, the numbers like 0, 1, 2, 3, 4 are called as whole number. Means whole number is what? Natural number plus 0. If you include 0 in natural number, it becomes whole number. Whole numbers are denoted by W, capital letter. W is equal to, in middle bracket, W is set of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to infinity. Then after third number is integers. Positive integers and negative integers. Integers means the numbers like -1, -2, -3, -4 up to minus infinity. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to infinity. Means this number and this number collectively called integers. Are called integers. Integers are denoted by capital I. So in mathematics, where is capital I? It means integer, and it include negative integer and positive integer both, including 0. Including 0. This includes 0 also, because integer equal to minus infinity dash dash -4, -3, -2, -1, 0. Means integer also includes 0. And it is two types, positive integer and negative integer. Then fourth number is rational number. The numbers which can be written as P upon Q, where Q is not equal to 0. Q 0 नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो P को डिवाइड जब हम 0 से करेंगे तो हमें नॉट डिफाइन आएगा, हमें नॉट डिफाइन मिलने लगेगा, इसलिए Q 0 नहीं हो सकता. मीन्स जब हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे किसी भी नंबर्स को, तो जो ऊपर वाला होता है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर. मीन्स एनी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो एनी नंबर्स which can be written as P upon Q where Q is not equal to 0 are called rational numbers. You can define it in another way. Any numbers whose decimal form, कोई भी नंबर जिसका डेसिमल
में जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे, इस टर्मिनेटिंग उसका डेसिमल फॉर्म में जो क्वेसेंट आएगा वो रुक जाए, डिवीजन रुक जाए पूरी तरह से, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रुके ना, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर नंबर क्या हो रिकर बार बार आने लगे, तो उस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर अगर हम डेसिमल फॉर्म में देखें तो रेशनल नंबर्स के जो होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकेगा नहीं, उनका डिवीजन रुकेगा नहीं, और रिकरिंग का मतलब बार बार एक ही नंबर का आना, बार बार एक ही नंबर का आना। आप एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे 1.573 एक नंबर हो गया, सेकेंड 3.141414 बार बार आए, इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 3.14 दिस इज बार। तो 1414 ये बार बार आ रहा है, तो 1414 रिकर कर रहा है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Q। रेशनल नंबर को हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर Q से इंडिकेट करते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, Q इज इक्वल टू all x such that x equal to p upon q where q not equal to 0। जब हम सेट्स को शुरू करेंगे तो हम ये समझेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। x q सेट का मेंबर है, all the value of x is member of set q, we will study later on। second, irrational number। तो what is irrational number? The numbers whose decimal form are non-terminating, non-recurring are called irrational number। Means अगर किसी भी नंबर को के डेसिमल फॉर्म को, अगर हम किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रुकेगा डिवीजन, जैसे 1.1417 आगे बढ़ता ही जाएगा और रुकेगा ही नहीं, डिवाइड करते जाइए आता ही जाएगा डेसिमल फॉर्म, रुकेगा नहीं, लेकिन टर्मिनेट नहीं करेगा कि कोई एक पर्टिकुलर जैसे 14 यहाँ पे बार बार आ रहा था, रिकर हो रहा था, यहाँ पे रिकर नहीं करेगा, ना तो रुकेगा डिवीजन और न ही इसमें किसी नंबर की या ग्रुप ऑफ नंबर्स की बार बार फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, चाहे √3 है, √2 है, √5 है, √6, √7, ये सब के सब आपको मिलेंगे, सबके सब को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स, इन्हें हम रियल नंबर्स कहेंगे। जितने भी रेशनल नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर हैं, उनको हम कलेक्टिवली एक साथ रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल R। तो कैपिटल R इज इक्वल टू या कैपिटल R इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये जो बड़ी वाली लाइन है इसको सच दैट पढ़ते हैं, सच दैट x इज एनी रेशनल और इर्रेशनल नंबर। तो इन दिस वे we have all studied numbers। अभी कुछ और नंबर्स पढ़ने हैं, जैसे ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, we will studies after that। इसको आप